خاران سے ہمارے بیورو چیف سلمان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق خاران وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر خزانہ و معدنیات میر شعیب جان نوشیروانی کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر آفس خاران ڈپٹی کمشنر منیر احمد سمرو کی سربراہی میں کھلی کچہری کا انعقاد ہوا۔ کھلی کچہری کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ کھلی کچہری میں ونگ کمانڈر خاران رائفل کرنل خرم عجب ملک، اسسٹنٹ کمشنر خاران رضوان قادر، چیئرمین میونسپل کمیٹی خاران میر نوردین نوشیروانی، مسلم لیگ نون کے رہنما میر محمود جان نوشیروانی، بلوچستان نیشنل پارٹی خاران کے ضلعی صدر حاجی غلام حسین شادین سئی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر خاران ڈاکٹر شیر احمد بلوچ، ایم ایس شیخ زید ہاسپٹل خاران ڈاکٹر محبوب بلوچ، ڈی ایس ایم پی پی ایچ آئی نور احمد کپتانی، انجینئر میر احمد سیاباد، زمیندار ایکشن کمیٹی کے صدر ملک منظور احمد نوشیروانی سمیت خاران کے تمام محکموں کے سربراہان سمیت سیاسی و قبائلی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں نے محکموں کی شکایات کیے اور متعلقہ محکموں سے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا پہلے والا جو کھلی کچہری کا جو آپ نے رپورٹ دیا تھا وہ اپنی جگہ پہ 100% یقیناً صحیح ہے، اس میں غلط فہمی کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کس محکمے کا بات کروں، آیا پی ایچ ای کا بات کروں، آیا میں وابڈا کا بات کروں، آیا میں زراعت محکمہ کا بات کروں، کون سے محکمہ کی بات کروں؟ اس میرے ذہن پہ مسائل کا انبار لگا ہوا ہے، لہذا یہ انبار باقی دوست میرے میں بیٹھے ہیں، یقیناً ایک کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا خیالات کا اظہار کروں اور مسائل کا پوائنٹ آؤٹ کروں۔ میں بذات خود بلوچستان نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور ضلعی صدر ہوں، اور نام میرا حاجی غلام حسین بلوچ ہے۔ مجھے ایک چیز بھی انتہا دکھ ہوتا ہے کہ خاران ایک پرامن علاقہ تھا، ایک پرامن ضلع تھا، آئے روز ادھر ڈکیتی ہوتے ہیں، چوریاں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بندوں کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور بازیاب ہوتے ہیں مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد۔ ہمارے معتبرین یا سابقہ ایم پی اے یا موجودہ ایم پی اے میں نے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب اور کرنل صاحب اور کمشنر صاحب کے جدوجہد پہ، مختلف ایجنسیوں کے جدوجہد پہ، پولیس کے جدوجہد پہ، اور مختلف ہمارے دوست یہاں سے اغوا ہو کے اغوا برائے تاوان پیسے کے حساب سے، تو مختلف دوست واپس بازیاب ہوتے۔ ابھی جو ایک بندہ رہ گیا ہے، میرے خیال میں خاران کے بچہ کو معلوم ہے اور انتظامیہ کو معلوم ہے، ایک آدمی میرے خیال میں 100 جگہ پہ 100 آدمیوں کے ساتھ ان کا سودا ہو کے لاسٹ میں ایک جگہ میں پہنچا، وہ بھی کارڈ والا ہے، کارڈ والا بلوچستان کے سربراہ ہے، اس کے پاس پہنچ گیا ہے، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ میرے خیال میں 5 کروڑ لائن، 10 کروڑ لائن، پتہ نہیں کتنا لائن۔ خاران کے جتنے ہمارے معززین معتبرین جو سرمایہ دار ہیں، اگر ہم دن رات چندہ کریں میرے خیال میں 10 کروڑ پورا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے سر؟ آیا آپ کا ڈسٹرکٹ خوددار ہو جائیں، ڈسٹرکٹ مجبور ہو جائیں اور مستوں کلاق ہو جائیں، اگر ادھر لے گئے، یہ بلوچستان نہیں ہے، بلوچستان کا ضلع نہیں ہے، آپ کا پہنچ ادھر نہیں ہے، ایجنسی کا پہنچ ادھر نہیں ہے، ایم آئی کا پہنچ ادھر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہیں آتا ہے، صرف وجہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ میں یہی سمجھتا ہوں، کارڈ والوں کو بالکل چھوٹ دیا ہے، بھائی جاؤ جیسا کرے گا کرو، کماؤ کھاؤ، اور ہمارے ضرورت پہ آپ لوگ مہربانی کریں کام کریں۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی بلوچستانی ہیں، یہی پاکستان کے آئین پہ ہمارا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، مہربان کا حق ہے۔ وجہ کیا ہے ایسا ہو رہا ہے؟ قانون بڑے آدمی کے لیے ہے، قانون غریب کے لیے نہیں ہے، لہذا
जितने मसाइल हैं, मैं किसी मसाइल पे बात नहीं करूंगा, किसी इश्यू पे बात नहीं करूंगा, मैं अमन व अमान पे बात करूंगा। कुछ दिन पहले यहाँ से, ठीक है मैं मानता हूँ इस चीज को, बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, हमें तकलीफ है, हमें परेशानी है, हम समझते हैं कि हमारा जीना हराम कर दिया है। जो है जो देख रहा हूँ विश्व साहब के हवाले से, तो मैं यहाँ खारान के हवाले से कुछ अहम ऐसे इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ और ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि इस कचहरी के बाद जो ये इख्तिताम पजीर होगा इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होनी चाहिए। जैसा कि मेरे दोस्तों ने बताया, सबसे पहले खारान बशमूली पूरा बलूचिस्तान का जो मेन इशू है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में काफ़ी हालात ख़राब हैं, टारगेट किलिंग हो रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे अपने घर का फिक्र है कि अल्लाह न करे खारान के भी हालात इससे ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो जाए। तो मैं इस तमाम चीज़ों का जिम्मेदारी जो है हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है, हमारे जो आर्म फोर्सेस है, उनका जिम्मेदारी है कि वो खारान के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें और उन पर कड़ी नज़र रखें और ख़ुद डिप्टी कमिश्नर साहब मेहरबानी करें, ख़ुद पेट्रोलिंग करें, क्योंकि जब कैप्टन जब वो सामने होगा, आगे होगा, फ्रंट मैन का रोल प्ले करेगा तो बाकी जितने उसके फोर्स हैं उनमें हौसला अफजाई होगी, उसमें जुर्रत पैदा होगी। तो पिछले हमारे खारान में एक मोतबर था, हमारे इलाके के एक शरीफ बंदा था, उसको अगवा किया गया, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है, इतना बड़ा रियासत, इतने उसके बावजूद वो बंदा अभी भी रिलीफ नहीं हो रहा है। तो उसके साथ साथ पुलिस बशमूल लेवीज बाकी हमारे जो फोर्सेस हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अपने आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें और साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो स्टेक होल्डर हैं। तो हमारे बलूची रवायत में है कि अपना गिला सुनाऊं या अपना दर्द सुनाऊं। पहली बात यह है मोहतरम, आपके सामने जो पहले जो गुजारिश हमने रखी थी, कमांडेंट रेहान महमूद साहब थे जो हमारे काबिल एहतराम बैठे हुए हैं, जो पहले हमने कही मगर उसी तरह वही धंधा चल रहा है। जो कहते हैं ना, वो धंधा बंद करने के लिए हमने आवाज़ उठाया मगर वो धंधा अभी तक नहीं बंद नहीं हुआ है। अभी तक आपका रेड जोन बंद पड़ा हुआ है, 4 लोग उठाए गए हैं, अभी तक डिप्टी कमिश्नर को बेचारा क्या कहूँ, वहाँ तक तकलीफ भी नहीं हो सकता है कि अपने पाँव को तोड़ और हमारे जितने भी, चाहे वो सिविल हैं, आर्म फोर्सेस से हैं, वो सब आपके लिए अवेलेबल हैं। थोड़ी सी 5 मिनट में आपसे लूँगा कि जो पिछली कचहरी में कुछ इश्यूज नोट हुए थे उनके ऊपर हमारी छोटी मोटी सी प्रोग्रेस जो हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर बाकायदा हम खुली कचहरी का आगाज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कुछ हमारे केसेस पेंडिंग थे, वो चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से थे या दूसरे डिपार्टमेंट से थे, जिनकी डेथ हो चुकी है डिजीज कोटा में। उसमें हफीजुल्लाह वल्द शेर मोहम्मद एक्स ड्राइवर जिनका केस यहाँ से हो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से होके अप्रूवल के लिए गया है, जो डिजीज कोटा में उनके बेटे वगैरह को भर्ती करना था। इसी तरह सिराज अहमद वल्द बशीर अहमद एक्स लेवी सिपाही थे, इनका केस होम डिपार्टमेंट अप्रूवल के लिए पहुँच गया हुआ है। वसीम अकरम वल्द मोहम्मद ईसा, जो हमारे मरहूम मोहम्मद ईसा एक्स कानून को एक्टिंग नायब तहसीलदार थे, उनके बेटे का केस अप्रूव होके चला गया हुआ है जॉब के लिए। मोहम्मद रमजान जो कि शहीद हैदर अली के भाई है, उनका केस यहाँ से अप्रूव होके होम डिपार्टमेंट की तरफ चला गया है जॉब के लिए। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहीद हैदर अली की कंपनसेशन 1 करोड़ 10 लाख का चेक भी उनकी फैमिली को मिल चुका है, जो कि आपने देखा होगा। इसके साथ साथ उनको शहीद डिक्लेयर कर दिया गया हुआ है। और लास्ट में बीबी शहजादी बेवा शहीद हैदर अली, ये जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दूसरा, यहाँ पे लास्ट खुली कचहरी में कुछ ने डॉक्टर्स की तैनाती के हवाले से बात की थी, तो हमने अपनी पूरी भरपूर कोशिश की, कमिश्नर साहब की एफर्ट थी, उसमें मुख्तलिफ
हमारे जो थे मिनिस्टर साहब, उनकी भी एफर्ट थी, तो उनकी वजह से कुछ डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे तैनाती हो चुकी है, जिनकी तफसीलात डॉक्टर महबूब और डॉक्टर शेर अहमद आपको बताएंगे। अच्छा, जनरली सिटी के एरिया के अंदर कुछ इश्यूज थे, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो यहाँ पे बाकायदा लेवीज और पुलिस का गश्त को बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ साथ मंशियात के हवाले से जो बातें थी, बाकायदा हमारा ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर शाह साहब की निगरानी में वो फंक्शनल हो चुका है, उसके कुछ इश्यूज हैं, वो भी हम उनको एड्रेस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इजाज यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने शुरू से लेके आखिर तक पानी के लिए काफ़ी हद तक एफर्ट की, तो काफ़ी हद तक पानी के हवाले से इश्यूज भी हमारे एड्रेस हो चुके हैं, जिनकी तफसीलात वो PHE और इजाज आपको खुद भी बताएंगे। तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, बाकायदा कुली कचहरी का आप लोगों की तरफ से आप सवालात वो करते जाएंगे, इनका आंसर हम करेंगे। लेडीज की स्नैप चेकिंग बढ़ाई, मैंने FC की पेट्रोलिंग होती है, वो आप FC की गाड़ी को देख के दहशत, मुझे दुख होता है। अजीज, आपको अगर याद हो DC साहब के दफ्तर में, जी बिल्कुल, मेरी नजर में दहशत एक गुनाहगार को पुलिस की गाड़ी से भी होनी चाहिए, दहशत उसको नहीं होनी चाहिए जिसने गुनाह नहीं किया। ठीक है, जहां तक पेट्रोलिंग शहर, हमें भी मसला होता है, हमें भी दुख होता है कि जब एक ग्रेनेड से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 7 जवान बच्चे जख्मी हुए। जिस दिन ये इवेंट हुआ है, जो इन्होंने बयान किया है, इवेंट बिल्कुल लातौलकी है मेरी इससे, मुझे कोई ऐसे अंदाजा नहीं है क्या फरमा रहे थे। अगर ऐसा हुआ होता और खुदा न खास्ता मैंने किया होता, मैं लिटरली इनको इधर अभी गले लगा लेता, लेकिन मैंने किया नहीं और ना किसी इदारे ने किया है। हमने उसी दिन DICC की मीटिंग, ये हिस्सा बैठे हुए, इन्होंने मुझे कहा सर आएंगे, मैंने कहा मैं 100 दफा आऊंगा। हमने उसी टाइम की है, हम इस पे काम कर रहे हैं। हर चीज को खुलेआम सरेआम डिस्कस करना ठीक नहीं है, और हमने वो पिछला मामला भी, वो जो जिम्मेदार भाई हैं मुख्तियार मैंगल, वो भी इसी वजह से खराब हुआ। थोड़ा सा आप ही सब्र का पैमाना अपना बरकरार रखें, हमने भी रखा हुआ है। और मुझे अगर मैंने जवाब ना देना होता तो मैं शायद इस कचहरी पे ना आता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठा हूँ, मुझे पता है हर दूसरे बंदे का ये दुख है, लेकिन किसी भी बेगुनाह को ना इधर यहाँ पे उठाया गया है, ना उठाया जाएगा। और अगर ये जो आप 24 या 25 की बातचीत कर रहे हैं, इस सारे मामले को हम देख रहे हैं, DC साहब, मैं, DIG साहब, हम सारे दिन में कुछ 4 मरतबा मिल चुके हैं, इस मामले को देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं लातौलकी कर दूं, मेरे भी एग्जेक्टिव यही है, डिस्ट्रिक्ट का हेड, मैं इधर अटेंडेंस में आता हूँ, वो और बात है, मुझे इज्जत दे देते हैं, मैं खुद सिक्योरिटी का इदारा हूँ। अगर इनको कोई जरूरत होगी मैं अपनी FC की पेट्रोलिंग दूंगा, इनको मेरा इक्विपमेंट चाहिए होगा मैं अपना दूंगा, इनकी पेट्रोलिंग में गाड़ी चाहिए होगी मैं दूंगा। मैं एक इदारा हूँ, ये एग्जेक्टिव है, मैंने इनकी बात सुनी, तो हम ये सब कुछ मामला साथ मिलके कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि DC को एहसास नहीं है, मैं बहुत से लोगों की बातचीत सुन रहा था, गलत बात है, बहुत एहसास है। और मैंने जब भी इन्होंने मुझे या मैंने इनको कॉल की है किसी भी मामले में, खास तौर पे सिक्योरिटी